let's do a few questions from the past papers. The first term of an arithmetic progression is -5 and the fifth term is 7. कह रहा है मेरी first term is -5, so a equals to -5 and my fifth term is 7, यानी t5 equals to 7. Find the sum of the first 40 terms of this progression. I have to find S40. ठीक है, यानी S40 is unknown. That is what I have to find. कभी भी sum निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे Sn अगर आपको याद हो तो n/2 2a plus n minus 1d होता है. So I need to find n. I need to know n. n मुझे पता है 40 होगा क्योंकि I have to find the sum of first 40 terms. The value of n would be 40. a की value मुझे पता है. I don't know the value of d. So I have to find the value of d first. How can I find the value of d? I have been given this clue by the examiner. ठीक है, examiner ने मुझे ये चीज दी है, इससे d की value निकाल सकते हैं. मुझे बताया उसने मेरी जो fifth term है वो 7 है. तो मुझे पता है कि मैं कोई सी भी टर्म को I can represent any term by the formula Tn equals to a plus n minus 1t. सही है. तो अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मुझे पता है t5 equals to a which is -5. n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी क्योंकि मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू would be 5. 5 minus 1 into the value of d which is what I have to find. अब t5 की ना वैल्यू मुझे एग्जामिनर ने दी है which is 7. ठीक है, तो आप यहाँ पे 7 लेंगे तो आपके पास जाएगा -5 plus 4d और ये हो जाएगा 12 equals to 4d and d would be equal to 12 upon 4 which is equal to 3. Now you have the value of d, you have the value of a, you can find your sum easily. सही है, तो अब सम हम लोग निकाल सकते हैं. तो हमारे पास सम क्या हो जाएगा, Sn equals to S40 निकालना था. तो S40 equals to 40 upon 2 into -5 plus 40 minus 1 into d which is equal to 3. सही है, तो आपके पास हो जाएगा 20 minus 10 and this would be 39 into 3 is equal to 117. अब आप कैलकुलेटर से अपना आंसर निकाल लें, which is 20 into 107 which is equal to 2140. So the value of S40 is 2140. There's another question from the past papers again. यहाँ पे एग्जामिनर मुझसे कहा है कि an arithmetic progression has the first term a and the common difference t. The third term is 13. ठीक है, यानी t3 equals to 13 and the 10th term is 41. यानी t10 equals to 41. सही है. अब एग्जामिनर मुझसे कह रहा है find the value of a and of d. a और d की वैल्यू निकालो. तो a और d की वैल्यू कैसे निकाले? मुझे पता है मेरे पास third term is 13 and 10th term is 41. I can make two equations out of it and I can solve them simultaneously to find the value of a and of d. ठीक है, तो करते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, t3 को I can represent by the formula a plus n minus 1d. ठीक है, तो t3 would be a which is what I have to find. n minus 1, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. तो 3 minus 1 into d. सही है, और t3 की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 13. So I can take that equal to 13. मेरे पास इसको ड्रॉप कर देंगे, मेरे पास हो जाएगा a plus 2d equals to 13. तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, तो a equals to 13 minus 2d. आपके पास अब क्या हो सकता है, यहाँ पे you have t10 equals to 41. तो you can write t10 equals to a plus 10 minus 1 into d. सही है, which is equal to 41. तो आपके पास क्या हो जाएगा, a plus, just use this side, तो a plus 9d equals to 41. तो यहाँ पे मेरे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी that would be 41 minus 9d. I can solve both of these simultaneously. यहाँ पे a की वैल्यू और a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a की वैल्यू को इधर यहाँ के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. I'm going to get 13 minus 2d equals to 41 minus 9d. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9d शिफ्ट हो जाएगा, तो this will become 7d and 13 will go on the other side. This will be 41 minus 13 equals to 28. So my value of d is coming out as 4. So once I get the value of d, I can find the value of a by either plugging in the value of d over here or over here. ठीक है, तो आप इसको यूज कर लें. तो a की वैल्यू हो जाएगी 13 minus 2 into 4 is equal to 13 minus 8 और इसकी वैल्यू आ रही है 5. So my value of a is 5 and my value of d is 4.
अब मुझसे एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड टू गिव अ सम ऑफ 2555। कह रहा है कितनी टर्म्स चाहिए मुझे कि मेरे पास ये सम आ जाए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और मेरे पास क्या है, सम गिवन है। तो मुझे सम का फॉर्मूला पता है कि एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, मुझे पता है कि एस एन की जो वैल्यू है दैट इज 2555, बट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ एन। आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए क्योंकि वो पिछली वाली तो सही आ रहा है, ए और डी की वैल्यू मुझे पता है। सो आई कैन कंप्यूट all of these values. I can plug in all of these values to find the value of n. You can pause the video over here and you can do this question yourself. तो आप जल्दी से इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो मेरे पास आ जाएगा 2555 एज माई एस एन। ठीक है, माई वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। ठीक है, ए की वैल्यू मुझे पता है विच इज 5, माई वैल्यू ऑफ टी इज 4। सो दिस इज 5 n minus 1 into 4. So yeah, I can multiply this 2 on the other side. I'm going to get 2555 into 2, which is equal to 5110. इनको यही रहने देंगे, 10 plus 4n minus 4। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 10 minus 4 is 6 and this would be 4n. So I'll get 6n plus 4n squared and this would be 5110. सही है, तो मेरे पास आ जाएगा 4n squared plus 6n minus 5110 equals to 0। ठीक है, in order to simplify my expression I can divide all of them by 2। मेरे पास आ जाएगा 2n squared plus 3n minus 5110 divided by 2 would be 2555 equals to 0। लेकिन you can make use of the quadratic formula to find the value of n। तो quadratic formula से हमारे पास क्या आ जाएगा, n equals to minus b plus minus under root b squared which is 3 squared minus 4 into a into c is 2555 upon 2a which is 2। सही, अब कैलकुलेटर से जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आएगा -3 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर्ड minus 4 into 2 into minus 2555 upon 4। तो मेरे पास जो प्लस के साथ जो आंसर आ रहा है दैट इज 35 और जो माइनस के साथ आंसर आ रहा है दैट इज -36.5। I'll reject -36.5 क्योंकि पहली बात मेरी जो टर्म नंबर जो होता है, टर्म नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो ये एक पहली बात इंटीजर वैल्यू नहीं है, माई टर्म नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कभी भी टर्म नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। सो माई वैल्यू ऑफ एन वुड बी 35। ठीक है, तो the sum of the first 35 terms equals to 2555। yeah। अब कह रहे हैं मुझसे कि Sn is the number is the sum of n sum to n terms, show that S2k minus Sk equals to 3k 1 into 1 plus 2k। कह रहा है यार ये साइड जो है इसको इस साइड के बराबर प्रूव करो, ये कह रहा है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करें? अब I have just this side, okay? तो I have S2k minus Sk। मुझे इसको प्रूव करना है कि ये इस साइड के बराबर है। तो S2k minus Sk क्या हो जाएगा? S2k के लिए I know the formula for Sn which is n upon 2 2a plus n minus 1d। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा एक मिनट। ओके, सो आई हैव टू फाइंड S2k minus Sk। ठीक है, तो मुझे पता है मेरे पास ये फॉर्मूला है। आई ऑल्सो हैव द वैल्यूज ऑफ a एंड d, so I have to use those values from the previous part। तो a की वैल्यू थी 5 और d की वैल्यू थी 4। सही है, तो आपको उनको यूज करना है। So now if you want to find S2k, क्योंकि मुझे S2k minus Sk करना है, तो S2k निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू को 2k ले लूंगा। तो S2k would be 2k upon 2 into 2 in 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2k minus 1 into d which is 4। ठीक है, तो ये जगह k 10 plus
8k माइनस 4, सही है। तो हो जाएगा k, 10 minus 4 is 6, 6 plus 8k. So yeah, so we'll leave it like this. You don't need to multiply k right now. हम लोग देखेंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो then we're going to multiply. S2k निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, हमें SK भी निकालना है। तो SK के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जहाँ पे n की वैल्यू हमने 2k ली थी, हम लोग n की वैल्यू k ले लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा k/2 इस फॉर्मूला में रखते हैं, ठीक है। तो k/2 2 into 5 प्लस n-1, जब n की वैल्यू k है तो k-1 इंटू d विच इज इक्वल टू 4, सही है। तो आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा k/2 विल गेट k/2 10 प्लस 4k-4, सही है। मेरे पास हो जाएगा k/2 10-4 is 6 plus 4k, सही है। तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ sk एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ s2k एज वेल, ठीक है। मुझे दोनों की वैल्यू मिल गई है, sk की वैल्यू मिल गई है और s2k की वैल्यू भी मिल गई है। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ ये चीज कंप्यूट करनी है, सही है। तो प्लेस दिस ऑन द साइड। तो आपको सिर्फ अब ये वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो अब ये वैल्यू निकालना आसान है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, sk वुड बी k into 6 plus s2k, sorry, s2k would be k into 6 plus 8k, and sk is k/2 6 plus 4k. अब क्या कर सकते हैं, मुझे ये चीज प्रूफ करनी है। मैं सब्ट्रैक्ट करूं इन दोनों को, आई एम गोइंग टू गेट दिस रिजल्ट, ठीक है। आई कैन टेक k एज कॉमन, क्योंकि मेरे पास k इधर भी कॉमन आ रहा है और k इधर भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। आई कैन टेक k एज कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विद 6 प्लस 8k माइनस, अब k कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1/2 6 प्लस 4k, सही है। प्लीज मैं ब्रैकेट के अंदर वाला के कॉमन नहीं ले सकता है, ब्रैकेट के बाहर जो के मल्टीप्लाई हो रहा है मैंने उसको कॉमन लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे यू कैन मल्टीप्लाई 1/2 विद 6 एंड 4k एज वेल। तो आपके पास आ जाएगा k 6 प्लस 8k माइनस 1/2 इंटू 6 इज 3 माइनस 1/2 इंटू 4k इज माइनस 2k, ठीक है। एंड k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3, 8k माइनस 2k इज 6k, सही है। अब मुझे क्या चीज प्रूव करनी है, आई हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। आई स्टिल हैवंट प्रूव्ड दिस, बट इफ आई टेक 3 एज कॉमन, मैं यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास जो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मांगा है वो चीज प्रूव हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 कॉमन ले लूंगा, गेट 3k इज इक्वल्स टू 3k, सॉरी 3 कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 प्लस 2k, यहाँ पे आ जाएगा एंड आई गॉट माई आंसर, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स हाउ प्रूव्ड इट। तो ये पहले आपको करना था और उसके बाद आपको ये करना था एंड देन यू हैड टू डू दिस, ओके। Now the last part of this video, the last question of this video is this. So get the first 3 terms of an arithmetic progression are, sorry. Okay, the first 3 terms of an arithmetic progression are this, this, and this. Find the smallest number of terms of which the sum of this arithmetic progression is greater than 2000. क्या 2000 से बड़ा हो, smallest number of terms without कि मेरे पास the sum हो that is greater than 2000. First thing that we have to do is find the value of a is minus 4. My common difference would be second minus the first or third minus the second. तो 20 minus 8 कर लें, 20 minus 8 आपके पास आ जाएगा 12। अगर आप 8 minus 4 भी करेंगे तो आपके पास जब भी 12 भी आएगा। अब क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टर्म्स सम बताया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स यानी Sn is greater than 2000 मांगा है, ठीक है। I have an inequality just saying यार Sn is greater than 2000, उसमें मुझे वो वैल्यू ऑफ n बतानी है, वो नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जहाँ पे मेरे पास सम जो है, जिनका सम मेरे पास greater than 2000 आएगा। Sn का मुझे फॉर्मूला पता है, that is n/2 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। That has to be greater than 2000. I can take, I need to find the value of n, तो n को n ही रहने देंगे, a की वैल्यू मुझे -4 पता है, d की वैल्यू मुझे 12 पता है, तो आप लोग जल्दी से ये खुद कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई दिस योरसेल्फ एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। तो n की वैल्यू तो निकालनी है, a की वैल्यू को -4 रखते हैं, d की वैल्यू को 12 रखते हैं, तो n minus 1 into 12 is greater than 2000. तो मेरे पास हो जाएगा this 2 can get multiplied on the other side, that would make it 4000
ये हो जाएगा -8 + 2n + 12n, सॉरी, -12 इज ग्रेटर देन 4000। 4000 कैसे हुआ? ये जो 2 था मैंने यहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई किया। सही है। अगर आपको नहीं करना मल्टीप्लाई, आप ना भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे जाके डिवाइड करवा दें, इट्स फाइन। तो -8 - 12 is -20, so I'm going to get n 12n - 20, ठीक है, is greater than 4000. This will become 12n squared minus 20n is -4000 is greater than 0. Can I divide everything by 4? Yes, I can. तो मेरे पास आ जाएगा 3n squared minus 5n minus 1000 is greater than 0. Now these numbers are a little big. You can apply the quadratic formula to solve this. तो quadratic formula से आपके पास जो n की वैल्यू आएगी, इसे याद रखना कि दिस इज एन इनइक्वालिटी, तो आंसर में इक्वल्स टू नहीं आता, लेकिन अभी हम सिर्फ ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, तो उसके इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए हम लोग इंटरसेप्ट्स, खैर अभी सिर्फ n की वैल्यूज निकाल रहे हैं। सही, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आएंगी? -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर विच इज -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a। ठीक है, तो 2 × 3 मेरे पास आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आना चाहिए है 5 प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर्ड 4 × 3 × 1000 अपॉन 6। मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 19.1, तो दूसरी वैल्यू आ रही है दैट इज -17.44। अच्छा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप इनइक्वालिटीज सॉल्व करते हैं तो इनइक्वालिटीज में आपका आंसर कभी भी इक्वल्स टू की फॉर्म में नहीं आता, आपका आंसर हमेशा इस फॉर्म में आता है। यू मेक अ कर्व, इसमें इंटरसेप्ट्स लिखते हैं आप, ठीक है। तो -17.44 गोज ओवर हियर, 19.1 गोज ओवर हियर। ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब है आई विल बी शेडिंग द रीजन above the x-axis, ठीक है। तो इसका मतलब है my answer is either less than -17 or is greater than 19.1. Obviously my value of n cannot be negative क्योंकि n represents a number of terms, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो my value obviously मुझे पॉजिटिव वाली ही लेनी पड़ेगी। तो n is greater than 19.1 मेरे पास आ रहा है। इसका मतलब है the smallest number of terms to achieve a sum of greater than 2000 is 20। 19.1 से बड़ी टर्म कौन सी है? क्योंकि greater than का साइन है, बड़ी टर्म होगी 20। 20 टर्म्स मुझे रिक्वायर्ड होंगी टू फाइंड टू गेट द सम equals is greater than, to get the sum greater than 2000. If you have any queries, if you have any questions, you can write them in the comments, and कोई और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो we can also have another video on that topic, और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।